Hello students and welcome to our channel Commerce 99. Today we are starting with English from chapter 1 1.1 An Astrologer's Day. Okay, so let's see about the writer who has written the story. R.K. Narayan 1906 to 2001, that is he was born in 1906 and left this world in 2001. His full name was Rasipuram Krishnaswamy Iyer. Narayan Swamy is one of the best known novelists among Indian English writers. He is the author of 14 novels, 5 volumes of short stories, and a number of travelogues, and has a collection of non-fiction to his credit. He also has written his memoir My Days in 1975. Narayan has created the imaginary town of Malgudi. You must have heard about Malgudi Days, the small stories that used to come on the television, Indian televisions, okay, where realistic characters in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. His stories are grounded in compassionate humanism and celebrate the humor and energy of ordinary life. His stories are characterized by a simple style and subtle spirit. Narayan was introduced to American readers in 1952 by the Michigan State University Press. These include Swamy and Friends, very famous short stories about the Malgudi Days, Swamy and his friends, The Bachelor of Arts in 1937, The Dark Room in 1938, An Astrologer's Day and Other Stories in 1947. Mr. Sampath 1949, The Financial Expert in 1954, Waiting for the Mahatma in 1955, and The Guide 1958, and many other books. So these are the number of books simply mentioned to make you understand that how many things he has written. His novel The Guide won him the Sahitya Akademi Award in 1961, the most coveted literary honor in India. The Sahitya Akademi Award is known to be as the most coveted literary honor in India. His writing is distinguished by humor and unoffending irony, a unique Indianness and a simplicity which is utterly charming and authentic. Narayan typically portrays the peculiarities of human relationships and paradoxes of Indian daily life. His style is graceful, marked by genial humor, elegance, and simplicity. So, this is all about R.K. Narayan, who has created the imaginary town of Malgudi. And out of that, this Swamy and his friends was a very famous one. And among that, we have an astrologer's day. Now, what do you mean by an astrologer's day? An astrologer's day means a day for an astrologer. Okay, like we have many astrologers around us. You must have heard about astrologer. Who is an astrologer? Who is an astrologer? You must be knowing it. Like जो आपको fortune telling करता है, the one who tells you about your fortune, आगे आपके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. All those things, as many of us depend on them, we go to them and give away our palms to find out what is good and what is bad for us to do. So this is the story about an astrologer who doesn't want to get into this profession, but by chance he took up this profession, and there comes a day on which he has used his techniques, he has used his way of making fool to others for saving himself from the person to whom he has met. Okay, so we'll see that in detail as we go further for the story. An astrologer's day. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. That is, an astrologer was very, very punctual with respect to his work, and he has opened his bag and spread out his professional equipments. Now, what all equipments are there in it? You can see like what all things he has carried for his professional work, that you can see in two further lines.
Okay, so you get the question for based on this particular thing, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. Okay, so what all things he had with his in his bag? He had a cowrie shell, dozen of cowrie shells. Like this is the code mixing word. You can see a Hindi word cowrie and the English word shells. So this comes for identifying the code mixing word from the passage, like which word is indicating code mixing over there, or otherwise you've been told, you've been asked to prepare a new code mixing word as per your choice. Okay, so cowrie shells, like the shells that you get at the seashore, all those were there with him. एक square piece of cloth with obscure mystic charts on it. So एक अलग तरह का एक square piece of cloth जिस पर जो है उनके नक्षत्र drawing was drawn on it, and he had a notebook, and along with that he had a bundle of Palmyra writing. What is Palmyra writing? A kind of palm जहाँ पर अलग अलग चीज़ जो है उस पर लिखी होती है, like which line indicates what and which line indicates what, this type of things are written on it. Okay, his appearance from here, how did he looked like? What was his appearance? So if you get a question to write about his appearance, you have to start from here. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. Okay, resplendent is bright, it was bright with sacred ash. उसने पूरे चेहरे पर अपने ऐश लगाया हुआ है, and उसमें वर्मिलियंस हैं, lines are there, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, and with this ash on his face, उसकी आंखें जो थी काफ़ी चमक रही थी, which was really an outcome of continual searching look for customers, which was like he is looking out for the customer, कौन आ रहा है, कौन मेरे पास आएगा, कौन मुझसे कुछ पूछेगा, कब कोई आएगा. तो his eyes were like continuously looking out for the customer, but which his simple clients searching look for customers, continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. तो जो भी आएगा, like they will come with a complete faith and hope that as we go to this astrologer, he will tell us something good about our fortune. So they will feel comforted about it. The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. ओके, तो ये जो चीज़ है फ्रॉम योर हिज फॉरहेड से लेकर के यहाँ तक के, इफ़ यू गेट टू राइट अबाउट और डिस्क्राइब द astrologer, so you can pick up the words from here, you can pick up the lines from this particular few lines which are been marked from year to year. Okay, तो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया है कि किस तरह से वो दिखाई दे रहा था, कैसे उसने ऐश लगाया है अपने फेस पर, वर्मिलियन है ऑरेंज कलर का लाइंस उसने डाला है फेस पर, उसकी आंखें बहुत ब्राइट लग रही थी. क्यों? बिकॉज वो अपने कस्टमर्स को ढूंढ रहा था, ऐसे कस्टमर्स जो उस पर पूरा ट्रस्ट कर सके, पूरा फेथ कर सके, एंड दे विल फील कंफर्टेबल टू गो टू हिम, अप्रोच टू हिम. और उसकी आंखें और ज़्यादा एनहांस्ड हो रही थी, एनहांस्ड यानी इंक्रीज हो रही थी, कंसिडरेबली एनहांस्ड बाय देयर पोजीशन प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फॉरहेड एंड डार्क विस्कर्स. आँखों के अलावा उसकी काली गहरी दाढ़ी भी बता रहे हैं कि ही हैड अ लॉन्ग विस्कर्स, लंबी लंबी मूछें और लंबी दाढ़ी भी जो है जो पूरे उसके चिक्स से नीचे जा रही है. ओके, और अगर उसकी आंखें भी ऐसे झपकती है तो दे हैड अ स्पार्कल इन दिस सेटिंग्स. अब इसके साथ जो उसको और ज़्यादा जो है अट्रैक्ट कर रहा है उसको, वो है टू क्राउन द इफेक्ट ही वोन्ड अ सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड. ठीक है, और उसके साथ में ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हो कि उसके इस अपीयरेंस को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए, और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और क्या चीज़ थी उसके पास, वो था उसका सैफरन कलर का टर्बन जो उसने सर पर बांधा हुआ है. दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड.
बिकॉज सैफरन कलर इज सो ब्राइट ना कि आप दूर से भी उसको देख सकते हो. द पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मॉस या फिर दहलिया स्टॉक्स. तो जैसे मक्खियाँ जो है इस दलिया फ्लावर के पास, इस दलिया प्लांट के पास घूमती है, उसी तरह से लोग उसको देखकर अट्रैक्ट होते थे. He sat under the boughs of spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. अब वो कहाँ पर बैठता था? वो एक टैमरिन ट्री के नीचे बैठता था जो टाउन हॉल के करीब से जाता था. Alright, this town hall was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. तो इट वॉज सच अ क्राउडेड प्लेस कि वहाँ पर लोगों का आना जाना सुबह से लेकर रात तक चलता ही रहता था. इट वॉज़ वेरी क्राउडेड प्लेस. अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे. यहाँ पर किस किस तरह के लोग, कौन कौन से लोग जो है अपना काम या फिर अपना बिजनेस करते थे या फिर बेचते थे. क्वेश्चन ऑल्सो रिगार्डिंग दिस कि वहाँ पर आपको कौन कौन से वेंडर्स जो हैं दिखाई देते थे. द वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड मेडिसिन सेलर्स, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and all above all, an auctioneer of cheap cloth, कपड़े बेचने वाला, who created enough din यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वहाँ पर लाता, all day to attract the whole town. सस्ते कपड़े बेचने वाले के पास लोग हमेशा जमा रहते थे. नेक्स्ट टू हिम, एस्ट्रोलॉजर के बाजू में ही, in vociferousness came a vendor of fried groundnut. ओके, तले हुए ग्राउंडनट बेचने वाला एक जो है ग्राउंडनट सेलर वेंडर वहाँ पर खड़ा रहता था. who gave his wear a fancy name each day, और हर दिन जो है अपने ग्राउंडनट्स को अलग अलग नाम दिया करता था. calling it Bombay ice cream one day, and on the next day Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth. तो हर दिन वो नया नया नाम अपने ग्राउंडनट्स को दिया करता था. and people flocked to him, और लोग उसके पास खींचे चले आते थे. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. dallied का मीनिंग आपको आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है. तो यू कैन सी दिस watched wasted time just hanging around. या आपको wasted time नहीं भी याद आ रहा है तो just hanging around also you can write. okay, so it's like जो आपको dallied का मीनिंग you get to write in a question paper. ओके, तो इट वाज लाइक जो भी लोग, जितने भी लोग जो हैं उसके पास आते थे, ग्राउंडनट वेंडर के पास आते थे, वो लोग एक मर्तबा बस यूं ही झांकने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास भी देखा करते थे. द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबाउ द ग्राउंडनट हीप नियर बाई. अब एस्ट्रोलॉजर अपना काम कैसे चलाता था? उसके पास तो लाइट वगैरह कुछ थी नहीं. तो ये क्या करता था कि जो ग्राउंडनट वेंडर है उसके पास ही में बैठा हुआ है. अब ग्राउंडनट वेंडर के पास जो आग जलती थी उसकी लाइट से वो अपना काम चलाया करता था. ठीक है. हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटनिंग. इफेक्ट और चार्म, उस जगह का मैजिकल इफेक्ट वो ये था कि वहाँ पर म्यूनिसिपल लाइटनिंग नहीं थी. तो लोग अपने अपने या तो गैस वाला जो लाइट होता था या फिर दे यूज्ड टू हैव अ फ्लेयर ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ देम. ओके, द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाइट्स. तो आसपास जितने भी शॉप्स थे वहाँ की लाइट से उस जगह पर रोशनी हुआ करती थी. 1 or 2 had hissing gas lights, some had naked flares stuck on poles, some were lit up by old cycle lamps, and 1 or 2 like the astrologer managed without lights of their own. तो इस तरह से आसपास के दुकानों में हम देखें कि क्या किसी के पास कोई गैस लाइट है, किसी के पास नेकेड फ्लेयर है, विच इज कुछ they were lit up by the old cycle lamps, and 1 or 2 like the astrologer managed without lights of their own.
It was a bewildering. What is bewildering? Bewildering is confusing. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. तो अगर तो जैसे फ्लेयर, आग का जो शोला है, आग का जो लाइट है, इट नेवर कीप स्टिल, कभी खड़ा मतलब एक ही पोजीशन में नहीं रहता है, हवा के साथ डुलता रहता है। तो जैसे वो फ्लेयर हिलता है, भी हिलते हैं, और जब लाइट का शेडो हिलता है तो आने जाने वाले लोगों का शेडो भी उसमें हिलने। ओके, It was like bewildering crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. And he knew no more of what was going to happen to others than he knew that what was going to happen to himself next minute. तो इट वॉज लाइक ये जो अंधेरा है, लाइट ऐसे वैसे हो रही है, शेडोज़ नहीं आ रहे हैं, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इट इज़ समथिंग लाइक बेस्ट सूटेड फॉर द एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज इसका सिंपल रीज़न यही था कि ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर. वो किसी भी हाल में एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं चाहता था जब उसने अपनी लाइफ स्टार्ट किया. और ही न्यू नो मोर ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू अदर्स. उसे पता ही नहीं कि सामने वाले के साथ क्या होने वाला है, कब होने वाला है. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट. नहीं जानता कि अगले मिनट में उसके साथ क्या होगा. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. तो जिस तरह से उसके कस्टमर्स इनोसेंट थे, उसी तरह से इनोसेंट था, बिकॉज उसको भी नहीं पता कि स्टार्स क्या हैं. Yet he said things which pleased and astonished everyone. फिर भी वो ऐसी बात कि उसके कस्टमर उससे खुश हो जाया करते थे. ओके, दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी. कैसे? तो वो लोगों का चेहरा पढ़ के, उनकी बातें सुन के, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क, या फिर एक जज करने वाला क्लेवर जो लोगों को जज करके उनके बारे में बताता था. ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. यहाँ पर एक आपके लिए क्वेश्चन आता है पर्सनल रिस्पॉन्स वाला. डज ही रियली डिज़र्व द वेजेस एट द एंड ऑफ. उसका काम ऑनेस्ट था क्या? वो लोगों को सच बातें बताता था? तो इट इज़ लाइक पर्सनल पर्टिकुलर लाइन के लिए क्वेश्चन आता है. तो डू यू थिंक दैट ही रियली डिज़र्व टू गेट द मनी? he really deserved to earn the money by telling the truth or the false, you can say, to the people by making them fool. तो now then he had left his village. अब वो थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसे यहाँ पर आया. He had left his village without any previous thought or plan. बिना कुछ सोचे समझे वो घर छोड़ देता है. If he had continued there, he would have carried ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स. और अगर वो अपने गांव में ही रहता, अपने विलेज में ही रहता, तो अपने फोर फादर्स का बिजनेस संभाल रहा होता, अपने फोर फादर्स का काम कर रहा होता. नेमली टिलिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम. तो या तो वो खेती बाड़ी कर रहा होता, शादीशुदा हो गया होता वहाँ पर, और फिर कॉर्नफील्ड में अपने खेती बाड़ी कर रहा होता. बट दैट वॉज नॉट टू बी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और उसने अपना घर छोड़ दिया और ऐसे भागा कि जब तक वो 100 माइल्स अपने गांव से दूर नहीं पहुंच गया. To a villager, it is a great deal as if an ocean flowed between. तो ये 100 माइल्स क्रॉस करना विलेजर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जैसे एक बड़ा ओशियन उन लोगों ने क्रॉस किया हो. He had a working analysis of mankind. Now यहाँ पर आपको बता रहा है, इस पैसेज में बता रहा है कि वो कैसे लोगों को जो है उनके फॉर्चून बताता था. तो he had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money and the tangles of.
ठीक है। तो किस तरह से वो लोगों के परेशानियों को, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, या फिर एक दूसरे में आपस में जो दुश्मनी हुआ करती थी वो किस तरह से उसको समझता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैज़ हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन। काफ़ी सालों से, सिंस काफ़ी सालों से वो यही काम कर रहे हैं, तो उसे लोगों के प्रॉब्लम्स समझ जाती थी। विदिन 5 minutes ही अंडरस्टूड वॉट वॉज रॉन्ग। और जब तक कि सामने वाला बंदा उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या उसका प्रॉब्लम है, वो 5 मिनट में समझ जाता था कि उसके कस्टमर के क्या इश्यूज़ हैं। ओके, एंड ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के 3 पाइज जो है। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 minutes। तो जब तक सामने वाला 10 मिनट अपने प्रॉब्लम डिस्कस नहीं बताता नहीं था, वो खामोशी से उसको सुना करता था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ, डजन ऑफ आंसर्स एंड एडवाइसेस। तो इस तरह से उसके पास काफ़ी जो है माल, यू कैन से, काफ़ी मटेरियल उसके पास जमा हो जाता था कि वो क्वेश्चंस को आंसर्स दे सके और उसको एडवाइस दे सके। When he told the person before him, gazing at his palm, जब उसके कस्टमर के हाथ को देखते हुए वो बोलता था कि इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स। तो जब वो जितने भी कस्टमर आते थे, सबको वो सबसे पहले यही कहता था कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होता था। तो फॉर उसका जो भी प्रेडिक्शन हुआ करता था, फर्स्ट प्रेडिक्शन, उसके लिए 9 out of 10 वर डिस्पोज टू अग्री विथ हिम। में से 9 लोग इस बात पर अग्री हो जाया करते थे। और ही क्वेश्चन, या फिर वो सीधा क्वेश्चन करता, इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, कोई ऐसी औरत है, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू। इफ़ नॉट इन योर फैमिली, या फिर तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई ऐसी औरत है जो तुम्हारी बातों से या तुमसे खुश नहीं है। गिव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर एक ही बात कहता, सामने वाले के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, कि तुम्हारा नेचर ही ऐसा है कि तुम्हें इस तरह की परेशानियों को। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज़। तो शनि तुम्हारे साथ में कैसे रहे, ऐसी आदतें हैं। तो यू हैव एन इम्पीटियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर। तो तुम्हारी आदत जो है बहुत इम्पल्सिव है, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो और वो तुम्हारा बाहर दिखाई देता है। दिस endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior। तो ये जो है endeared लाइकेबल, वो इस तरह से लोगों को बोलता था कि लोग उसे पसंद करने लगते थे और सोचते थे कि हाँ, सच में हमारे में कुछ तो खामी है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू यूज टू हैंडल दी हैंडल्स। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए क्या होता है कि एक दिन स्टोरी बता रहे हैं, एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि नट्स फ्लेयर को ब्लू करके बुझा करके वो जाने वाला रहता है। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हीज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। जाने की तैयारी कर रहा है कौन? नट्स वेंडर। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू। तो ये उसके लिए क्या हो जाता है? सिग्नल के चलो अब अपने भी जो है सब कुछ बंडल करना है, सब कुछ बांधना है और जाना है। It left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him। तो जब वहाँ से जाता है, क्योंकि उसकी फ्लेयर ऑफ हो गई, उसके पास जो आग जल रही थी वो बंद हो गई, तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या हो गया? अंधेरा हो गया। ठीक है, और एक हल्की सी ग्लीम ऑफ लाइट जो है उसके सामने आती थी, लेकिन उसके चेहरे को ना टच करते हुए उसके सामने जो ज़मीन है वहाँ पर पड़ती थी। He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into। ठीक है, ये सब कुछ अपना समेट कर बैग में डालने जा रहा है। When the green shaft of light was blotted out, आ रही है, उसकी मदद से अपना सामान समेटने की कोशिश कर रहा है। He looked up, इससे पहले कि वो लाइट भी बंद हो जाए, वो अपना सामान लपेट कर रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, He looked up and saw
एंड स्टैंडिंग बिफोर हिम। तो वो अपना चेहरा ऊपर उठाता है और देखता है कि कोई उसके सामने खड़ा है। अब उसे लगता है ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसको देखकर कहता है कि चलो एक और कस्टमर आ रहा है, इससे पहले कि मैं बंद कर लूँ इसको मैं डील कर लेता हूँ। यू लुक सो केयर वोन, तुम बहुत परेशान। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी, तो तुम्हारी परेशानी हल हो सकती है अगर तुम मेरे पास 2 मिनट के लिए बैठो और मुझसे बात करो। तो जो द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली, और उसे कुछ गुस्से में बोल देता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, फिर उसको जो है जोर देता है कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर,